So we were discussing क्या सेल्यूलर फिजियोलॉजी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे. ओके, तो वी वर डिस्कसिंग द सेल्यूलर फिजियोलॉजी टॉपिक. नाउ इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ रहे थे. तो वी वर डिस्कसिंग ऑस्मोटिक प्रेशर वाला एक्सपेरिमेंट. Osmosis. तो Yes. इसीलिए कुछ नोट्स हम लोग लिख लेंगे पिछले क्लासेस से. सो ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो हमारा एक टर्म आएगा हम लोग यूज करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट टॉपिक में, इसको हम लोग ओपी बोलेंगे. तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर needed to stop the movement of water from the left tube into the right tube. Okay, तो वो जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, notice that the osmotic pressure of a solution does not produce the movement of water during meiosis. Rather, it is the pressure that would prevent such water movement. ठीक है, तो इसीलिए normally the osmotic pressure of the cytosol is same as that of the interstitial fluid. Because the OP on both sides of the membrane is same, okay, cell volume remains क्या relatively constant. Okay, now when body cells, ये एक और टर्म आ जाएगा, तो इसको हम एक और हिंट दे देंगे. When body cells are placed in solution having a different osmotic pressure than cytosol, however, the shape of the volume and volume of the cell change as water moves by osmosis into or out of the cells. Their volume increases or decreases. A solution's tonicity, okay, is a measure of the solution's ability to change the volume. Okay, तो कितना वॉल्यूम वो चेंज कर सकता है, किस तरह का चेंज, बढ़ाना, घटाना या सेम रहना, इसी अनुसार हम उसको उस टर्म को क्या बोलेंगे, टोनिसिटी. ठीक है, सो दैट इज रेफर्ड टू एज टोनिसिटी. ठीक है. Yes, sir. नाउ अगर हम लोग किसी सेल को एक सोल्यूशन में डालते हैं एंड वहां कोई चेंज नहीं होता, तो a solution in which a cell, for example a red blood cell, okay, maintains, okay, इधर एक हाइफन दे देते हैं, maintains its normal shape and volume is an isotonic solution. Okay, isotonic solution मतलब ना तो वो अपना शेप बदलता है, ना ही अपना वॉल्यूम बदलता है. ओके, उसी तरह आपका इसमें क्या होगा, एक्चुअली इसका रीजन क्या है, दैट उसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है हमारा, वो आइसोटोनिक का मतलब क्या है, ह्यूमंस में दिस विल बी हाउ मच, 0.9 grams. 0.9%. Concentration of solutes that cannot cross the membrane are the same on both sides of the membrane in this solution. For instance, 0.9% NaCl, इसको भी NaCl कर देते हैं, okay, in 100 ml of solution, okay, is called normal saline solution. Okay, is isotonic for RBC. ठीक है, the RBC plasma membrane permits the water to move back and forth, but it behaves as though it is impermeable to sodium
and chlorides. Okay, the solutes. So any sodium or chloride ions that enter the cell through channels or transporters are immediately moved back out by active transport or other means. When RBCs are bathed in ethicky, water molecules enter and exit at same rate, allowing the RBCs to keep their normal shape. ये समझा रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है. जनरली ऑस्मोसिस में हम लोग सिर्फ सॉल्वेंट मूवमेंट देखते हैं, तो इसीलिए अगर सॉल्वेंट मूवमेंट के साथ कोई आयोनिक मूवमेंट भी हुआ तो बॉडी उसको वापस कर देता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. ठीक है जी. सो दिस इज द कंसेप्ट. इसीलिए सिंस जितना पानी जा रहा है उतना पानी अंदर आ रहा है, हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. क्लियर. तो इसलिए कुछ हाईलाइट करेंगे हम लोग पॉइंट्स. तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तापरे टोनिसिटी. ओके, उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, उसके बाद 0.9% NaCl सॉल्यूशन. ये हमारा आइसोटोनिक है, याद रखना. दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर आवर सेल्स. ठीक है. तो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जिसमें आपका कंसंट्रेशन में वेरिएशन हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. एंड उसमें चेंज करेगा. There will be some or the other changes. ठीक है. Now a different situation results if RBCs are placed in a hypotonic solution. ठीक है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, मतलब क्या है, इसका कंसंट्रेशन कम होगा. A solution that has a lower concentration of solutes than the cytosol inside RBCs. तो यहाँ क्या होगा बोलो. Lysis. हाँ, सोचो सोचो. Don't talk nonsense. You have enough time to think. We are in no hurry. सोच के बताओ, सोच के बताओ. Water inside. बोलो. So more water will enter as compared to leaving, sir. हाँ, तो इसलिए पहले गुस्सा इतना जल्दी मार नहीं दो. In this case, water molecules enter the cells faster than they leave, causing the RBCs to swell and eventually to क्या burst. तो ये eventually burst करेगा, not like that. The rupture of RBCs in this manner is called hemolysis. मतलब RBCs लॉस हो रहा है. Okay, it's called hemolysis. The rupture of other cells due to placement in a hypotonic solution. ये वैरी करेगा और क्या, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो देखो आ जा रहा है इधर. नेक्स्ट पेज में लगा दीजिए. ये सब सजाने से फिर गड़बड़ आता है ना. कितना नीचे जा रहा है, थोड़ा सा ना. डिफरेंट सिचुएशन रिजल्ट्स. इसको हटाओ ना, इसको क्या देंगे. देखो आ गया. If RBCs are placed in hypotonic solution that has lower concentration of solutes, then the cytosol is हो गया. Ready?
फैंटास्टिक। तो आ गया। तो अब ये आपका क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा। सो द आरबीसीज ओके इन दिस मैनर इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। नाउ अब ये जो हीमोलाइसिस है ये कंट्रोल्ड हीमोलाइसिस हो सकता है या फिर रैपिड हीमोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, अगर कंट्रोल्ड हीमोलाइसिस है तो बर्स्ट होगा कि नहीं होगा, बोलिए। No, sir. क्योंकि आप लोग एक आंसर अभी तक ढूंढ के नहीं निकाले, बिकॉज यू थिंक कि जेजेस विल फॉरगेट, बट आप तो जानते हो कि जेजेस फॉरगेट नहीं करता। बहुत सरल सा। मैंने आपको घोस्ट के बारे में पूछा था कि नहीं, तो आप तो भूल ही गए यस घोस्ट सर, के बारे में। तो यहाँ आते हैं निकाला था सर। क्या निकाला था बताओ। देखिए, सर वो रप्चर्ड आर। the rupture of other types of cells due to placement is referred to simply as lysis. ओके उसको हम लोग सिंपली लाइसिस बोलेंगे। प्योर वाटर is very hypotonic and causes rapid hemolysis. Okay, so when RBCs are put in pure water, they burst and produce white ghosts. समझ रहे हो? तो आप जिसके बारे में बोल रहे हो उसको हम लोग व्हाइट घोस्ट्स बोलते हैं। ओके, एंड प्रोड्यूस व्हाइट घोस्ट्स। ओके, नाउ these are fragments of RBC membrane. Okay, these were used by okay Fry and Edidin to study क्या freeze fracture techniques, and they were also used to study the details of क्या components on the ICF and ECF side of the lipid bilayer. तो समझ रहे हो? तो इसको हम लोग व्हाइट घोस्ट कहते हैं। ओके, नाउ if the hemolysis if the hemolysis is controlled in such a manner that the RBC membrane stretches maximum but does not burst. Okay, but does not burst. In this case, the membrane pores become larger and all hemoglobin are lost through these pores. Okay, through these pores, leaving behind an entire RBC membrane with its dynamic shape, okay, but has nothing inside the cell. Okay, these are
referred to as red ghosts. समझ रहे हो? So these are referred to as red ghosts, and they are okay, and they were used to study the details of the shape of RBC and their physio and their morphology, biochemistry, physiology, and pathophysiology. ओके, आ गया अध्याय जेवी जी समझ में आपको? एंड Yes, आप sir. इतना सा चीज ढूंढ के नहीं निकाल पा रहे, समझ में आया? तो दीज आर कॉल्ड रेड घोस्ट. Yes, sir. एक्चुअली घोस्ट रेड ही से शुरू हुआ, फिर व्हाइट आया. क्यों मालूम है? इसको घोस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सब है बट कोई नहीं है. अरे हम लोग घोस्ट कैसे बनाते हैं? अगर एक डंडे के अंदर कपड़े को लटका के घुमाते हैं तो आपको क्या लगता है? कोई बंदा है बट वो उड़ रहा है, तो फिर आपको क्या लगता है? वो घोस्ट है. तो एक्चुअली रेड घोस्ट कब बनता है? जब हम कंट्रोल्ड हीमोलाइसिस करेंगे, इस तरह से करेंगे कि वो फटे ना. तो अगर वो फटेगा नहीं तो एंटायर आरबीसी मेम्ब्रेन विल बी फाउंड इंटैक्ट. क्यों उसका शेप बाइकॉनकेव है? बाइकॉनकेव शेप मेंटेन कैसा होता है? ओके, हर चीज हमारा क्यूरियोसिटी है कि नहीं? सो व्हाई द शेप इज मेंटेन्ड, हु मेंटेन्स दिस शेप, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शेप, अगर शेप टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो क्या होगा? तो ये सारा का सारा चीज हमने इससे पढ़ा था. एक्चुअली मैं ये भी पढ़ाता हूँ बट तुम लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो, इसलिए फिर ये पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे. बट ओल्ड एनसीईआरटी में ये पार्ट है, समझ रहे हो? इमेजिन. तो ओल्ड एनसीईआरटी में ये पार्ट दिया हुआ है. तो मैं बहुत पढ़ाने का मन था बट आद्या ने मना कर दिया, तो इसलिए फिर मेरा भी मन टूट गया, है कि नहीं? चलिए, सो ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो अब आ गया आपको व्हाइट घोस्ट एंड रेड घोस्ट. Yes, sir. सो इसलिए व्हाइट घोस्ट जो है वो छितड़े हैं. ओके, तो व्हाइट घोस्ट आर द श्रेड्स ऑफ द आरबीसी मेम्ब्रेन. तो उन टुकड़ों को लेकर हमने क्या किया? हमने आपका जो फ्रीज फ्रैक्चर मेथड किया. चलिए, Freeze fracture technique. एक्चुअली व्हाइट घोस्ट पहले मिल गया, रेड घोस्ट हमको बनाना पड़ा. क्यों मालूम है? कितना कंसंट्रेशन दे कि वो मैक्सिमम स्ट्रेच करे बट टूटे ना. जैसे अब मैं आद्या का उंगली Patel. उल्टा, Yes, sir. अब आद्या का उंगली में उल्टा मोड़ूंगा, माने अपोजिट साइड में, तो मैं देखूंगा कि घर से ऐसे कर दूं तो क्या होगा? टूट जाएगा. टूट जाएगा. तो मुझे जॉइंट नहीं तोड़ना है बट देखना है कि कितना ज्यादा मुड़ सकता है. तो मैं क्या करूंगा? धीरे 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 मोड़ेंगे. एंड उसको उतना लेवल तक लेकर जाऊंगा कि उससे अगर ज्यादा गया तो वो टूट जाएगा. बस, तो इसका मतलब आद्या फिंगर कैन बी रोटेटेड मैक्सिमम 130 डिग्री, या इस तरह से कोई एक कंक्लूजन हम निकालेंगे. क्या 180 डिग्री तो नॉर्मल है, 270 डिग्री है कि नहीं, एंड सो ऑन. तो ये हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे. फाइन, सो लाइक दैट. तो इसीलिए कंट्रोल्ड हीमोलाइसिस करना है. इतना सोल्यूशन डालो कि वो फटे ना, बट इतना खिंच जाए कि पोर्स बड़े हो जाएंगे. एंड क्या होगा? आपका सारा का सारा सामान जो है बाहर निकल जाएगा. बिकॉज हीमोग्लोबिन आर प्रोटीन्स, है कि नहीं? तो वो आराम से बाहर निकल जाएंगे.
कोई शक? तो आज आपको बहुत दिन No, बाद sir. नो सर, नो सर। का पता चल गया। गुस्सा मत करो। चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? तो इट हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स देन डज द साइटोसॉल इनसाइड आरबीसी, है कि नहीं? तो इसीलिए इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन है आरबीसी से ज्यादा। तो वो क्या होगा? एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। ओके, 1 is 2% NaCl. ओके, आप जितना बढ़ा दो तो लाइक दैट इन सच ए सोल्यूशन, यू नो, माने एक आई कैन किल यू बाय जस्ट गिविंग ए गुड सॉल्ट कंसंट्रेशन। सपोज आपको 1 किलो नमक खिला दिया जाए ना, तो भी एक बंदा मर जाएगा। आप जानते हो कि नहीं? सपोज यू फीड Yes, ए sir. पर्सन 1 kg सारा सॉल्ट, पानी निकल तो बॉडी का सारा पानी क्या होगा? वो निकल जाएगा। बंदा निकल सुखुआ, जाए। he will become a सुखुआ या ड्राइड आत्मन एंड सो ऑन। तो इसीलिए these hypertonic solutions are highly dangerous. Okay, now अब सपोज एक कुछ लोग बोलते हैं कि people like Atman and judges should not take jams and jellies. Can you tell me why? इन लोग को जैम बहुत शुगरी होता है, हाँ बोलो। बहुत शुगरी होते हैं। और शुगरी होता है तो उससे क्या होगा? उतना बॉडी पानी रोक लेगा। Yes, sir. more pickles, the more sugary things you take, बॉडी उसको डाइल्यूट करने के चक्कर में उतना ज्यादा पानी रोक लेगा या पी लेगा, तो यू विल अगेन बी ब्लोटेड, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इन सच ए सोल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल 2% डिफर कर सकता है ना सर? क्या बोला? सर 2% जो NaCl सॉल्यूशन लिखा हुआ है सर, ये डिफर करेगा ना? ये क्या करेगा? मतलब अलग भी हो सकता है ना, ज्यादा या कम हो सकता है ना? ऑब्वियसली जितना बढ़ाओ। अरे More than पॉइंट 0.9. 0.9 से ज्यादा होना चाहिए बस। Yes, अगर sir. आपका कंसंट्रेशन 0.9 से ज्यादा है तो वो हाइपरटोनिक है। अब 100% NaCl ले लो ना, दिक्कत क्या है? चलिए, तो इन सच ए सोल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल्स मूव आउट ऑफ सेल्स फास्टर देन दे एंटर, causing the cells to shrink. Okay, such shrinkage of cells is called crenation. Okay, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रीनेशन। ओके, so such is called crenation. आ गया मजा? तो चलिए, तो ये हम लोग हो गया विथ रिस्पेक्ट टू हाइपोट पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर लिया है। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, विल गो नेक्स्ट स्टेप एंड अब हम लोग उसके आगे का डिस्कस। क्या इतना डिस्टर्ब करता है ये? चलिए, सो अब आपका क्रीनेशन एंड जो नॉर्मल शेप आपको दिखा रहा हूं मैं। आई एम ट्राइंग टू शो यू ए फोटोग्राफ। देख रहे हो? तो ये हमारा जो शेप है, इसमें हमने क्या किया? सो ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी डाला, तो उसमें क्या हुआ? आना जाना सेम है, तो ये एज इट इज है, नॉर्मल शेप का है। हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है? अंदर जा ज्यादा रहा है, कम आ रहा है, इसलिए वो फूल गया है। ओके, तो इसको हम लोग हीमोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, हीमोलाइसिस इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज धीरे धीरे हीमोग्लोबिन बाहर चला जाता है एंड टूट जाता है। ओके, एंड हाइपरटोनिक में डालने से क्या होगा? पानी ज्यादा निकल जाता है, कम घुसता है, तो इसलिए आपका क्रिनेट हो जाएगा, शेप टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो दिस इज द 3D शेप ऑफ क्रिनेशन। ठीक है, तो इसका फोटो खींच लूं ताकि मैं आपको भेज सकूं। तो मैं आपका इतना केयर लेता हूं कि आपको भेज देता हूं सारा डिटेल्स एंड अपलोड भी कर देता हूं।
सर ये जो फोटो दी है आरबीसी अंडरगोस हीमोलाइसिस, यही रेड घोस्ट है ना? नहीं, रेड घोस्ट कब होगा? जब सारा आरबीसी से निकल जाए। सारा निकल गया होगा। तो हमें इसके शेप से ये नहीं पता चल रहा है कि वो निकल गया है। ओके, तो ये आपका लिटरेचर बोलेगा कि निकला है या नहीं निकला है। अगर आपको लिटरेचर में लिखा है कि सारा निकल गया तो वो है हीमोलाइसिस। ठीक है, तो इसीलिए हमारा हीमोग्लोबिन यस निकल सर। जाना चाहिए। बट अगर बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक होगा या प्योर वाटर होगा तो ये ठाई हो जाएगा, ये इसके पूरे छितड़े हो जाएंगे। ओके, यू कैन डू, आप है ना एक छोटा सा ड्रॉप ब्लड काट के पानी में डालो, आप सुनोगे ना पिट 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 ऐसे सुनाई देगा। क्लियर? सो यू कैन इजिली हियर इट। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारा एक बहुत सुंदर सा टॉपिक है। एंड अब हम लोग चले जाएंगे एक्टिव प्रोसेस पे। बहुत हो गया एक्टिव हमारा ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसलिए हम लोगों ने पैसिव। बहुत सारा पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव प्रोसेसेस। एक्टिव प्रोसेसेस, चलिए, सो ये हमारा एक्टिव प्रोसेसेस है। तो अब एक्टिव प्रोसेसेस में हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। So we will discuss active transport. Now, some polar or charged solute that must enter or leave body cells cannot cross the plasma membrane through any form of passive transport because they would need to move uphill. Uphill का मतलब क्या है? बोलिए। अगेंस्ट द ग्रेडियंट। Against gradient. Against their concentration gradient. Such solutes may be able to cross the membrane by a process called active transport. ठीक है, active transport is considered an active process because energy is required for carrier protein to move solutes across the membrane against concentration gradient. Two sources of cellular energy are there. तो हम दो सोर्सेस यूज कर सकते हैं। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। ओके, और एक आयोनिक कंसंट्रेशन। क्या बोलो? हाँ, सर आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड नंबर टू इज एनर्जी स्टोर्ड इन द आयोनिक concentrations gradient is the source of सेकेंडरी। secondary active transport. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड कि कौन सा किसका? तो एनर्जी स्टोर्ड इन आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसको यहां लिखेंगे नहीं, जगह नहीं है। तो ह्यूमन एनिमल्स में कौन सा? सोडियम। Sodium. प्लांट्स में प्रोटॉन। तो ये आप गांठ H+. बांध लेंगे। ठीक है, तो इन आवर केसेस ड्राइवर इज ऑलवेज सोडियम। ओके, क्योंकि ये सब बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। कहना यही जेजेस नॉन जेजेस में फर्क आ जाता है। सो लाइक कैरियर मीडिएटेड, ओके, facilitated diffusion active transport process exhibit a transport saturation. ओके, तो इसीलिए क्या आ गया? चलो,
कुछ भी ऐसे कर दो ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। चलो इसको हम लोग उसी तरफ ले जाएंगे भैया, इतना मुश्किल से किया है। चलो तो इसको हम लोग उधर ले जाएंगे। क्या इसमें अंडू फंडू कर दो ना, ये सब पगला जाते हैं। चलिए तो अब इसको उसी तरफ ले जाते हैं। ये संकेत दे रहा है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो टाइम कटने का आ गया। ओके।